Good morning, class 9. How are you all? Hope you all are well and fine. Today we are going to start with a few fresh new chapter that is a truly beautiful mind. Now in this chapter we are going to talk about the famous personality Albert Einstein. I have already done a poem with you that was written by the famous poet Robert Frost, and there I have also mentioned you about the explanation. I gave you all the explanation line to line meaning and gave you the question answers also. I hope you are paying attention and doing the work in your classwork copy, in your English literature copy. Now today our topic will be a truly beautiful mind, where we understand, where we'll try to know about Albert Einstein, his genius character, and what was his personal and his professional life about. Now first paragraph we are going to learn about Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. Now he was born in the year 1879, and that time it was not indicated that he will be becoming a famous personality, a famous scientist in his future. On the contrary, that means on the opposite hand, his mother thought Albert was a freak. Now his mother often used to think that he was a freak because in his childhood he was not that clever and he was not that smart when he was a small kid. To her, his head seemed too much large. Now people used to think that his head was too much large. At the age of 2.5, Einstein still wasn't talking. Now it's very peculiar that at the age of 2.5 years, when he was 2.5 years old, Einstein was not able to speak properly. He couldn't even speak. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. He used to say everything twice, everything 2 times. Einstein did not know what to do with other children. Now he was not sure what kind of problem he was having and why he was so slow, and his playmates, his friends, always called him brother boring because he was quite boring. He was not like other usual kids. So the youngsters played by himself, so they often tried to bully him. They tried to make fun of Einstein. We'll move with the second page, page number 47. Now he especially loved mechanical toys. Now he used to love all the toys, that is cars especially. Looking at his newborn sister Maja, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" Now जब वो अपनी सिस्टर को देखता जिसका नाम था माजा, ना वो हमेशा सोचता कि उसके व्हील्स कहाँ हैं. इट इज़ क्वाइट फनी बिकॉज वो बहुत छोटा था उस वक्त, 2.5 years, एंड ही यूज्ड टू थिंक कि वो इसके व्हील्स कहाँ हैं. मतलब उसको टॉयज़ से इतना इंटरेस्ट थे कि वो सब कुछ में व्हील्स देखता कि व्हील्स कहाँ हैं. तो अपनी छोटी बहन में भी, न्यूबॉर्न सिस्टर में भी वो अपने व्हील्स देखते. Now, a headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he'll never make a success at anything. एक बार उसके हेडमास्टर ने उसे कहा, उसके फादर से कहा कि आइंस्टाइन अपने प्रोफेशन को चूज़ नहीं कर सकता बिकॉज उसके पास सक्सेस होने की कोई गुंजाइश नहीं. ही विल नॉट बी एबल टू मेक हिमसेल्फ सक्सेसफुल. आइंस्टाइन ऑल्सो बिगैन लर्निंग टू प्ले द वायलिन. ना उसे वायलिन एट द एज ऑफ 6, व्हेन ही वाज एट द एज ऑफ 6 उसे वायलिन में इंटरेस्ट आया, बट हिज मदर वांटेड हिम टू. ना वाई वायलिन में क्यों मैसेज ऐसे इंटरेस्ट आया? बिकॉज उसकी मामा चाहती थी. ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट. वो कुछ समय बाद वो एक फेमस वायलिनिस्ट भी बन गया. मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ. ना उसने वायलिन को एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बनाया अपने लाइफ में, और जब भी वो परेशान रहता या सैड रहता तो वो वायलिन बजाता. बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल. बट एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बैड प्यूपिल नहीं था, एक गुड स्टूडेंट था. प्यूपिल ओवर हियर मीन्स स्टूडेंट. He went to high school in Munich where Einstein family had moved when he was 15 months old. Now वो एक फैमिली में गया, वो हाई स्कूल में गया इन म्यूनिक, जहाँ पे उसके फैमिली मूव कर चुके थे जब वो 15 महीने का था. एंड स्कोर्ड, एंड वो वहाँ बहुत अच्छे मार्क्स लाया इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट.
आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन। आइंस्टाइन को स्कूल का ये रेजिमेंटेशन पसंद नहीं था, उसका डिसिप्लिन पसंद नहीं था और वो हमेशा आर्ग्यू कर जाता अपने टीचर्स से। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। ना जब वो 15 ईयर्स का हुआ तो उसे इतना अनॉयंस फील हुआ, उसे आर्ग्यूमेंट से, ये जो टीचर से उसकी आर्ग्यूमेंट हो जाती या टीचर से जो उसकी बातें नहीं बन पाती, जो टीचर उसको समझ नहीं पाते, तो वो अब उस स्कूल को छोड़ दिया फॉर बेटरमेंट। ना पैराग्राफ नंबर 5, द प्रीवियस ईयर आइंस्टाइन पेरेंट्स हैड मूव टू मिलन। ना एक साल पहले उसके पेरेंट्स मिलन में मूव कर चुके थे एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और उसके अपने रिलेटिव्स के पास छोड़ दिए। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, काफ़ी डिस्कशन के बाद, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड। तो बहुत डिस्कशन के बाद, बहुत कन्विंस के बाद अपने पेरेंट्स को वो कन्विंस कर पाता है कि उसे जर्मन सीखना है और वो स्विट्ज़रलैंड में चाहता है अपनी पढ़ाई कंप्लीट करे। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन आइंस्टाइन गॉट हिज विश, ना उसकी विश पूरी हुई, टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड। कहाँ पे? स्विट्ज़रलैंड में, जो जहाँ पे जर्मन स्पीकअप होता था। इन अ सिटी इन विच हैज़ मोर लिबरल दैन म्यूनिक। ना इस शहर में उसके लोग जो थे वो, नाउ ओवर हियर इट इज़ मेंशन आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन आइंस्टाइन को ये आइंस्टाइन चाहता था कि अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करे एंड वो जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में अपने आप को कंप्लीट करना चाह रहा था अपनी पढ़ाइयों को। इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिक। ना म्यूनिक से ज़्यादा यहाँ लिबरल लोग थे, लोग उसके मजाक नहीं उड़ाते थे। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। ना ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन ऑफ दैट टाइम। वो उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था मैथ्स में एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। ना उसका मन था कि वो फिज़िक्स में उसके इंटरेस्ट थे एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही वांटेड टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. ना यहाँ पे उसके कैरेक्टर के बारे में बताया गया है, जहाँ पे उसे वॉलरस मोस्टैच, उसके मोस्टैच ना आइंस्टाइन के जो मोस्टैच थे वो वॉलरस की तरह दिखते थे, लेकिन सिर्फ साइंस ही उसको अपील नहीं करता था, उसके यंग पर्सनालिटी को, डैशिंग पर्सनालिटी को, कुछ और भी था जहाँ पे उसका लाइफ इक्वली इंटरेस्टेड रहा है। We'll move to the second page, page number 48. He also felt a special interest in a fellow student. ना उसे अपनी एक fellow student पे बहुत इंटरेस्ट था, whom he found to be a clever creature, जिसे वो समझता कि वो बहुत ज़्यादा क्लेवर है। दिस यंग सर्ब, ना शी वॉज अ सर्बियन, वो सर्ब की थी, सर्बियन ट्राइब की थी, एंड हैज़ कम टू स्विट्ज़रलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज। ना वो इस जगह पे क्यों आई थी? क्योंकि यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक जो है वो कुछ डिग्रियों में से एक था, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एक था जहाँ वुमेन को डिग्री मिल सकती थी, जहाँ वुमेन एजुकेशन पॉसिबल था। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्तीन्स। ना उसे लगता था कि वो एक एली, एक फ्रेंड, एक एसोसिएट रह सकती है। कौन? ये मिलेवा मालिक। ओके, दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विथ हुम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स। क्योंकि उससे पहले उसकी बातें बनती नहीं थी किसी के साथ, ना ही फैमिली मेम्बर्स के साथ, ना ही यूनिवर्सिटी के टीचर्स के साथ, जिससे वो हमेशा क्लैश में रहता। द कपल फेल इन लव, द मिलेवा मालिक and Albert Einstein, they fell in love and they wanted to marry. Letters survive in which they put their affection in words. ना उस ज़माने में मैसेजेस नहीं होते थे, लेटर्स के ज़रिए वो लोग अपना अफेक्शन एक्सप्रेस करते। ना व्हाट इज अफेक्शन हियर? अफेक्शन मीन्स लव, केयर, मिक्सिंग विद साइंस विद टेंडरनेस। ना उनके इस लेटर में साइंस भी था और पोलाइटनेस, टेंडरनेस मतलब पोलाइटनेस भी था, मतलब कि उनके जो राइटिंग था वो उसमें साइंस की बातें ज़्यादा होती थी। आइंस्टाइन यूज्ड टू राइट हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी वन व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। ओके, ना वो अपनी फ्रेंड से ये हमेशा कहता, मिलेवा मैरिक से, कि मैं बहुत खुश होऊंगा जब हम दोनों मिलकर एक
इम्पॉर्टेंट थ्योरी को प्रोपाउंड करेंगे, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, और उस पर एक कंक्लूजन लाएंगे जो बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक होगा, बहुत ज़्यादा विक्टोरियस होगा. Now in paragraph number 8 we will find that in 1900 at the age of 21 Albert Einstein was a university graduate and unemployed. Now at the age of 21 में वो graduate हो चुका था और लेकिन वो unemployed था. He worked as a teaching assistant, gave private lesson and finally secured a job in 1902. Now उसे job मिला as a technical expert in the patent office in Bern. While he was supposed to be assessing other people's invention, Einstein was actually developing his own ideas in secret. ना वो क्योंकि वो एक एज एन इंटर्न काम कर रहा था, लोगों के इन्वेंशन में वो हेल्प करता, साइंटिस्ट के इन्वेंशन में, लेकिन वो एक्चुअली वो खुद का एक्सपीरियंस गेन कर रहा था किसी बहाने वो खुद का इन्वेंशन कुछ क्रिएट कर सके, खुद का कुछ इन्वेंट कर सके. एंड ही वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़. तो वो अपने आइडियाज़ पे वर्क कर रहा था इन सीक्रेट. Now he is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. Now उसने jokingly अपने desk drawer से ये कहा भी कि that bureau, he was the Bureau of Theoretical Physics. Now he was a great personality in physics. Now कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे that he was so profoundest towards physics that he wanted to invent something not for the people but for himself. Now one of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity. Now Einstein का थ्योरी आया था जिसको हम लोग फेमसली क्या कहते हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट. जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि टाइम और डिस्टेंस एब्सोल्यूट नहीं है. इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम क्लोजर टुगेदर. Okay, now we are going to continue with the next part of the chapter in the next class. We will continue with the next topic in the next class. Please go through each and every line carefully and also understand the different phrases and the word and meanings given in the book. Now we'll meet in the third class and in the next class we'll continue with the next topic. Thank you so much. Have a nice time, dear.